हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी सीबीएसई नोमैथिकल एम्पायर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं इतिहास का जो है अध्ययन अवार साम्राज्य, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है, जो कि 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन पे एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हम करेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में रहेगा, तो ये और भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो हर एक क्वेश्चन को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर और नोमैथिकल एम्पायर हियर इज important for the 11th history here. Next question arrive here is important. Discuss the causes of the success of Genghis Khan. You know that there's an important question here. Discuss the causes of the success of Genghis Khan here. The prior to his death, Genghis Khan had established a vast empire within a short span of 20 years. There's an important short year here, 20 years, they established of the empire. And some of the main causes of the success are listed below. You know that the main reasons here is important. He was a commander and directives are for net to be get a success. Wherever he's won, he become a real terror of his component. You know that he become a real terror of his opponent. He also established a large disciplined army. It is important. He established a large disciplined his army. It was not easy to the face such a Huck's army. Not an easy face such as Huck's army here. His spies used to collect every bite of information about the opponent's army and give it to him. You know that there's an important success in spies here. Spies used to collect every bite of information. This is important. He knew that important. Now that important is a psychologically warfare and used to be unless to design to terror. In this effort, people could not face his army. People's fear here. It's not a face his army. He used to make a people dread his forces, and so that people could surround her without hanging a war against him. The Mongol soldier will expect his horse riding, and also this is important. Genghis Khan usually launched his expedition during to the winter season, because during his season river used to the freeze and make it easier to cross them. That's an important point here. The Genghis Khan usually launched their expedition during the winter season, because you understand the river used to the freeze and make it easier cross them. And this use the naphtha is a bombardment is a destroyer enemy, and the force and the had to be deadly is result in the course of the war. यहाँ पर जो हमारे समक्ष चैप्टर आया है यह अवार साम्राज्य, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्लास 11th इतिहास का। हमारे समक्ष जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंगेज़ खान की सफलता के कारणों का हमने यहाँ चर्चा करना है कि चंगेज़ खान आखिर क्यों सफल हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। किसी की सफलता में कुछ बातें महत्वपूर्ण होती है और जहाँ तक देखा जाए तो अनुशासन काफ़ी महत्व रखता है। चंगेज़ खान ने अपनी मृत्यु से पहले 20 वर्ष की अल्प अवधि में ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर लिया था। कहते हैं 20 साल अधिक नहीं होती है ये, और 20 साल की अवधि में उसने एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य का जो है स्थापना करना एक काफ़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और उनकी सफलता के कुछ कारणों के यहाँ पर हम वर्णन करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि वो कारण क्या थे। देखा जाए तो वो एक जन्मजात कमांडर थे, यानी वह जन्मजात एक कमांडर था और जहाँ भी गए सफलता पाने के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली भी थे। यानी भाग्यशाली यहाँ पर इसलिए कहना उचित होगा क्योंकि उस समय काल ऐसी थी जिसको विजय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि आपसों में राजाओं के संघर्ष, अपने को दुश्मन बन जाना, ये सारे फेवर उसके फेवर में थे, सारी कंडीशन उसके साथ थी। इसलिए भाग्यशाली भी कहना यहाँ पर उचित ही होगा। वह अपने विरोधियों के लिए वास्तविक आतंक बन गया था। कोई भी विरोधी उसके सामने टिकता ही नहीं था। उन्होंने एक बड़ी अनुशासित सेना की स्थापना किया था और इतनी बड़ी सेना का सामना करना किसी भी शासक के लिए आसान नहीं था, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बना देता है। उनके जासूस प्रतिद्वंदी सेना के बारे में हर जानकारी इकट्ठा करते थे और उसे बताते थे। देखिए, कोई भी अगर साम्राज्य सक्सेस होना चाहता है, कोई भी राजा सक्सेस होना चाहता है, इवन आज के समय में, तो हमें जनता के भावों के बारे में पता लगाना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों के बारे में जानना चाहिए। देखा जाए चंगेज़ खान ने काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पद्धति अपनाई थी। उसने जासूस जो है अपनी प्रतिद्वंदी सेना में भेजते था, जहाँ पर उसकी छोटी से छोटी बातें जो थी उसके फेवर में थी और काम आ जाती थी। इसलिए उसने जासूस प्रथा भी वहाँ पर चलाते थे, जो छोटी से छोटी जानकारी जो है चंगेज़ खान को लाके देते थे। वो मनोवैज्ञानिक युद्ध के महत्व को जानता था और क्षेत्र में आतंक फैलाता था। इस प्रयास में लोग उसकी सेना का सामना नहीं कर सकते थे। कहते हैं अगर सेना को पहले ही किसी चीज़ से भय हो तो वो कभी नहीं जीत पाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जब आपको पता ही होगा कि भारत में जब अलेक्जेंडर हमला किया था तो उसके सेना ने आगे बढ़ने से इसलिए मना कर दिया था कि उनको पता था कि धनानंद के जो वंशज थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे और उनके सेना में बहुत ही प्रतीक्षित सेनानायक था। इसलिए अलेक्जेंडर के सेना ने जो है आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया और बिना सेना के जो है युद्ध लड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ पर देखा जाए चंगेज़ खान भी मनोवैज्ञानिक युद्ध का महत्व देता था। वो पहले दुश्मन की खेमा में जाके जो है अपनी सैनिकों के बारे में एक खौफ पैदा कर देता। उनके सैनिक उनसे सामना करने से पहले ही डर जाती थी और जिसके कारण उसको विजय होना स्वाभाविक बन जाता था। वो लोगों को अपनी सेना से भयभीत करता था ताकि लोग उसके खिलाफ युद्ध छेड़े बिना ही आत्मसमर्पण कर दें, और ऐसा ही होता था। वो लोगों को इतना भयभीत कर देता था कि लोग बिना युद्ध लड़े ही आत्मसमर्पण कर देते थे। मंगोल सैनिक घुड़सवारी और तीरंदाजी में काफ़ी माहिर थी और उनकी यही कुशलता उनको विजय का सबसे बड़ा कारण बनता था। चंगेज़ खान आमतौर पर सर्दियों के मौसम अपना अभियान शुरू करता था। अब सोचिएगा कि चंगेज़ खान आमतौर पर सर्दियों के मौसम में ही अपना अभियान क्यों चलाता था, तो इसका भी बहुत बड़ा कारण था मनोवैज्ञानिक तौर से, क्योंकि इस मौसम में नदी जम जाती थी और उन्हें पार करना आसान होता था। आपको बता दूं, जब अलेक्जेंडर भारत में प्रवेश किया था तो बरसात का मौसम था और इन्हीं कारणों से जो है भारत की सेना जो है हार गई। अलेक्जेंडर से भारतीय सेना जो है पोरस की सेना थी वो हार गई। कारण क्या था कि उसमें घोड़ा टिक नहीं रही थी, बारिश के फिसलन बहुत थी और जिसके कारण जो है यहाँ पर हारना पड़ गया और यहाँ पर जो है अलेक्जेंडर विजय हासिल किया, क्योंकि पोरस की सेना टिक नहीं पाई। बेशक ही पोरस की सेना अधिक थी और यही बात यहाँ पर चंगेज़ खान भी अपना रहा था कि चंगेज़ खान जो है यहाँ पर देखा जाए सर्दियों का मौसम का उपयोग करता था, क्योंकि इस समय सारी नदियाँ जम जाती थी तो उसको पार करना बड़ा आसान होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है
और उसे पार करना आसान और जीतना भी उसके लिए आसान हो गया था। देखा जाए तो नेफ्था बम्बोडेमेंट के इस्तेमाल से दुश्मन के लिए किले नष्ट हो गए, यानी नेफ्था का इस्तेमाल वो बहुत करता था और दुश्मनों के किले नष्ट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी और युद्ध के दौरान इसके भयानक परिणाम भी होते थे। तो देखा जाए तो इन कारणों से जो है यहाँ पर चंगेज़ खान अपना जो है विजय अभियान चलाया और कहते हैं बहुत ही कम समय काल 20 वर्ष की अवधि में ही उसने पूरे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, समझ में आता है, अच्छा लगता है। तो जितना हो सके त्रिपाण चंद्र को शेयर करने की भावना आपके मन में बरकरार रखना चाहिए।